میرے ذہن نے پرکاش سے متعلق ایک شاندار منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور اب میں اسی پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں کئی مرتبہ میں نے اس منصوبے کا جائزہ لیا، اس کی تمام جزیات پر نظر ڈالی اور اللہ پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گیا۔ اپنے منصوبوں پر کام کا آغاز تو میں نے اس سے ملاقات کے ساتھ ہی کر دیا تھا، لیکن اصل مرحلہ اب آیا تھا۔ میں نے شام ہی سے ایسی رونی صورت بنا رکھی تھی اور اس کی باتوں کے جواب میں اس طرح ہوں ہاں کر رہا تھا کہ اس کا شک میں مبتلا ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے کمرے میں رات کا کھانا کھاتے ہوئے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے۔ میں نے خامخواہ سسپینس پیدا کرتے ہوئے کہا کچھ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس یوں ہی۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا اور کھانے سے الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا یوں ہی؟ سیدھی طرح بتاؤ ورنہ۔ میں نے کہا یار کچھ نہیں، تم کھانا کھاؤ۔ اس نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک بتاؤ کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا یار کھانا شروع کرو، بتاتا ہوں۔ تمہیں نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا؟ میں نے غمناک لہجے کی اتنی شاندار ایکٹنگ کی کہ خود کو داد دینے کو جی چاہا۔ میری گفتگو کے انداز نے غالباً پرکاش کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلا دیا تھا، جو وہ چپ ہو رہا۔ کھانا ختم ہونے تک ہم نے کوئی گفتگو نہ کی۔ کھانا بھی دونوں نے بڑی بددلی سے کھایا تھا۔ میں نے کافی بناتے ہوئے گفتگو کے لیے تمہید باندھی۔ پرکاش میری زندگی کا ایک حصہ سفر کی نظر ہو چکا ہے۔ سینکڑوں لوگ ملے، اچھے بھی برے بھی، لیکن نہ جانے تم میں کیا بات نظر آئی کہ، اور میں اسے اپنی داستان بتانے لگا۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد پرکاش مجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار تھا۔ میری دردناک داستان نے اسے دوران گفتگو ایک مرتبہ رلا بھی دیا تھا۔ میں نے کہا میری ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی، سوتیلی ماں نے بے پناہ ظلم ڈھائے، آج تک اسی لیے گھر سے بندھا رہا کہ ایک سگی بہن بھی تھی، پچھلے ماہ وہ بھی مر گئی۔ اس نے اصل میں مرتے وقت مجھ سے وچن لیا تھا کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اب میرا باپ کے گھر میں کیا ہے؟ اس کہانی کا پرکاش کے لیے سب سے بہترین حصہ میری دانست میں وہ تھا جہاں اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ میں نے چوری چھپے 25-30 ہزار روپے اس برے وقت کے لیے جمع کر رکھے تھے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ کسی فیملی کا رکن بن کر لدھیانہ میں کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دوں، اور اب میری نظر انتخاب اس پر ٹھہری ہے۔ برے بھلے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ میں آج بھی جب ماضی پر نظریں دوڑاتا ہوں، پرکاش کے رویے میں مجھے لالچ کی جھلک نظر نہیں آتی۔ اس نے مجھے اس لیے نہیں اپنایا تھا کہ مجھ جیسا دھنوان دھرم ویر مل جانے سے اس کی کایا پلٹ جائے گی۔ کسی حد تک ممکن ہے اس فیصلے کے پیچھے یہ جذبہ بھی کار فرما ہو، لیکن انسانی ہمدردی کے جراثیم اس میں کچھ زیادہ ہی پائے جاتے تھے۔ وہ شدت جذبات سے بے قابو ہو کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ پرکاش میرا اور بھائی نہیں ہے، بھگوان نے مجھے بھائی دے دیا۔ میری خواہش پر وہ رات میرے پاس ہی ٹھہر گیا۔ ابھی رات کے 10 ہی بجے تھے جب دروازے پر وہی مانوس دستک سنائی دی۔ پرکاش کو میں نے لیٹے رہنے دیا اور خود دروازہ کھول کر باہر آ گیا، جہاں کل والی شریمتی جی موجود تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلے، میں نے انگلی منہ پر رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اسے حیران و پریشان پکڑ کر راہداری کے ایک کونے میں لے گیا۔ میں نے ایک مخصوص طبقے کا لہجہ اپناتے ہوئے کہا اپنی سالی قسمت ہی ایک دم پھوکٹ ہے۔ اس نے میرے نزدیک سرکتے ہوئے پوچھا اب کیا ہو گیا مہاراج؟ میں نے کہا سالہ۔ وہ بولی کیا مطلب؟ میں نے کہا سالے کا مطلب سالہ ہی ہوتا ہے اور کیا۔ کمبخت عین وقت پر آن مرا۔ اس نے توبہ شکن انگڑائی لیتے ہوئے کہا سب چلے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہے میں فوراً بولا دماغ خراب ہے کیا؟ ان کے طفیل تو اپنا دال دلیا چل رہا ہے، اس سے بھی چھٹی کرواؤ گی کیا؟ میں نے واپس مڑتے ہوئے کہا کل تک کے لیے آخری مرتبہ معافی۔ اس نے جاتے جاتے بازو سے پکڑ کر مجھے جھٹکا دیا۔ کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا ہاں؟ میرا روم نمبر 101 ہے، وہاں چلے آؤ۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کی، اچھا اب رام رام، اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے چل دیا۔ میرے کمرے کے قریب ایک بےہودہ اشارہ کر کے وہ آگے بڑھی اور میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ پرکاش نے پریشانی سے پوچھا کیا بات تھی بھیا؟ کون تھا؟ میں نے کہا تھی یار ایک بلا، بڑی مشکل سے جان چھڑائی، کمبخت جان کو آ گئی تھی۔ وہ بات سمجھتے ہوئے مسکرا دیا، اچھا ہیپی ہوم میں وہ میری آخری رات تھی۔ صبح اٹھ کر میں اپنے فرضی والد سے حساب بے باک کرنے اور اپنا پیسہ نکلوانے کے لیے اپنے شہر کو چل دیا اور پرکاش اپنے کام پر چلا گیا۔ میں نے 3 روز کے بعد واپس آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ 3 دن میں نے بھارت کے 3 مختلف شہروں میں گزارے اور ان 3 دنوں میں نے گھوم پھر کر انڈین افواج کی نقل و حرکت کا بھرپور جائزہ لیا، اور چوتھے روز میں ایک نئے عزم کے ساتھ رائے کوٹ کی طرف عازم سفر تھا۔ وہ ہفتے کا روز تھا جب میں رائے کوٹ کے ایک محلے میں پرکاش کے چھوٹے سے گھر کے باہر لگی گھنٹی کا بٹن دبا کر کسی کی آمد کا منتظر تھا۔ مجھے علم تھا کہ پرکاش اس وقت گھر پر نہیں ہوگا اور رات گئے وہ لدھیانے سے آئے گا۔ اسے میری آمد کی خبر تو تھی، لیکن اتنی جلدی میرے آنے کا علم نہیں تھا۔ میں دانستہ ایسے وقت آیا تھا تاکہ پرکاش کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے اپنے بارے قائم کردہ تاثرات کا میں خود اندازہ کر سکوں۔ اس سے پہلے اس کے گھر والوں سے ملاقات تو ہو چکی تھی، لیکن سرسری سی۔ اس معاشرے میں چونکہ پردہ نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی اور مشرق کی روایتی شرم و حیا کا کم از
از कम शहरों की हद तक जनाजा निकल चुका है, इसलिए किसी भी घर में किसी अजनबी की आमद पर कोई नहीं चौंकता। दरवाजे के पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं संभल कर खड़ा हो गया, लेकिन दरवाजा खुलने पर जिस सूरत से सामना हुआ उसे देखकर अपना आप तो क्या ईमान तक डगमगाता महसूस होने लगा। जी, उसने एक खास अंदाज से अपना एक हाथ दरवाजे पर टिकाते हुए पूछा। मेरे मुंह से बमुश्किल ही निकल पाया, प्रकाश से मिलना है। वो बोली, वो तो नहीं है। उसकी झुकी झुकी आंखें मुख्तसर से जवाब के साथ उठी और कयामत ढा गईं। मैंने कहा, माता जी। गर्दन को कदरे खम देते हुए उसने पूछा, चाची वो तो हैं, आपका शुभ नाम? मैंने कहा, प्रकाश। मेरा नाम भी प्रकाश है। वो बोली, क्षमा कीजिए, मैं अभी आई। वो अंदर जाने को मुड़ी और कयामत की चाल चलती सामने लगे पर्दे के पीछे गायब हो गई। बमुश्किल 1 मिनट के बाद ही उसकी दोबारा आमद हुई। आइए। उसका एक अदाए खास से झुककर इशारा करना मुझे फिर तड़पा गया। मैं मशहूर सा उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। घर में प्रकाश की माँ अकेली ही मौजूद थी। मैंने हिंदुआना तरीके के मुताबिक झुकते हुए उन्हें प्रणाम किया। पाँव लागू माताजी। माताजी ने मुझे ऐसे प्यार से देखा, जुग जुग जियो, जैसे वो पहले से मेरी मुंतजिर हों। फिर बोली, पूनम जल पानी करवा दो मेरे बच्चे को। उन्होंने उसी दुश्मन ईमान से कहा जो अभी तक मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। माताजी बोली, ये पूनम है बेटा, मेरी भांजी। सालिग्राम को तो तुम जानते ही हो, ये उसकी बहन है, और ये मेरा बेटा है प्रकाश भैया। दोनों के तारुफ का मरहला भी माताजी ने तय करवा दिया। वो बोली, बहुत आनंद मिला, आपसे जानकारी हुई। मैंने उसके नमस्कार के जवाब में हाथ बांधते हुए कहा, मुझे भी। चांद चेहरे की चिराग आंखों ने फुसूं फूंका। प्रकाश के पिता रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे थे। अपनी सर्विस की कमाई उनके पास प्रकाश, एक खटारा सी मोटरसाइकिल, छोटा सा मकान और शानदार जीवन साथी की शक्ल में मौजूद थी। ये तो इल्म नहीं कि सियासत में हिस्सा लेना उन्होंने कब शुरू किया था, लेकिन उनकी बैठक में रखी लातादाद सुर्ख जिल्दों वाली किताबें उनके सोशलिस्ट होने की चुगली खा रही थी। वो रायकोट की मकामी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे और अपना ज्यादातर वक्त दफ्तर में ही गुजारा करते थे। साथ वाले मकान में उनकी साली रहती थी। सालिग्राम की माँ जो बेवा थी। सालिग्राम का एक छोटा भाई और एक बहन थी। पूनम ने हाल ही में FSC में दाखिला लिया था और कॉलेज पढ़ने के लिए उसे रोज लुधियाना जाना पड़ता था। रायकोट में एक डिग्री कॉलेज जरूर था, लेकिन वहाँ साइंस की क्लासें नहीं लगती थी। ये दोनों कुंबे आपस में इस कदर मिलजुल कर रहते थे कि उनके एक होने का गुमान गुजरता। सालिग्राम की तनख्वाह और उसके स्वर्गबाश वालिद की पेंशन से उनकी जैसी तैसी गुजर रही थी। पूनम ज्यादा वक्त अपनी आंटी के साथ ही गुजारती थी। मुझे इल्म नहीं कि मेरी अमारत के किस्से जो उसके भाई और कजन ने दोनों घरों को बढ़ा चढ़ा कर सुनाए होंगे, उन्होंने इन्हें मुतासिर किया या फिर मेरी दर्द भरी दास्तान ने। एक बात बहरहाल अया थी कि जब उसे मेरी असलियत का इल्म हुआ तो मैंने उसकी गहरी गहरी बादामी आंखों में अपने लिए वो जज्बात मौजन देखे जिसकी तवक्को एक रहम दिल नौजवान लड़की से की जा सकती है। मुझे जलपानी पूनम ने करवाया। ये रोबे हुस्न था या मेरा एहसास कमतरी कि अभी तक मैं उससे खुलकर बात न कर पाया था। उसे देखते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई चीज मुझसे छिन गई। वो रिवायती हिंदू लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसकी गुफ्तगू का मखसूस अंदाज, नपतुला लहजा, अपने दामन में वो मखसूस हयादारी और रख रखाव समेटे हुए था जो पंजाब की रिवायती मुटियारों के यहाँ मिलता है। मोहब्बत मेरी जिंदगी के सिलेबस का कोई इख्तियारी मजमून तो था नहीं जिसे मैं अपनी मर्जी से रखता या छोड़ देता। मेरे दिलो दिमाग में एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई जिसका अंजाम बहरहाल दिल की फतह की सूरत में निकला। मुझे इस बात का इकरार करना है कि सांवले रंग की उस गहरी आंखों वाली लड़की ने मेरे दिलो दिमाग पर पहली नजर में बड़े गहरे असरात मुरतब किए थे और रात को प्रकाश की आमद तक एक आग सी दिल में बराबर लगी रही। मैंने अपने शऊर की तमाम तर गहराइयों के साथ इस बात को कबूल कर लिया कि मैं पूनम की मोहब्बत का असीर हो चुका हूँ। इस असना में हमारे दरमियान बातों के एक आध दौर हो चुके थे, लेकिन मेरे मुख्तसर सवालात और उसके मुख्तसर जवाबात ने शायद उसे भी इस बात का एहसास दिला दिया कि हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। शाम को प्रकाश आया तो आते ही मुझसे लिपट गया। उसकी खुशियों में मजीद इजाफा इन खूबसूरत कमीजों ने किया था जो मैं उसके लिए लाया था। बाबूजी के लिए बनारसी धोती और कुर्ते के अलावा माताजी के लिए एक कीमती साड़ी, इन चीजों ने मेरा मान खासा बढ़ा दिया। पूनम सबकी खुशियों में इस तरह शिरकत कर रही थी कि जैसे वो भी हमी में से हो। मैंने प्रकाश के लिए खरीदा हुआ लेवेंडर परफ्यूम सालिग्राम के लिए कहकर उसे सौंप दिया, लेकिन मेरी चोरी उसने ही नहीं प्रकाश ने भी पकड़ ली। रात को बाबूजी आए तो मुझसे यूं मिले जैसे कोई अपने सगे बेटे से मिलता है। मैंने हलवाड़े वाले मामले के मुतालिक बता दिया था। मैंने कहा वो मेरे डैडी ने जबरदस्ती की बला मेरे गले डाल दी थी कि मैं अपनी सौतेली बहन के मंगेतर का जोग्राफिया मालूम करता फिरूं। मैंने उनसे दरखास्त की थी कि मेरे माजी से मुतालिक मुझ
मुझसे कोई बात न करें। मैं अब वो सब कुछ भुला देना चाहता हूँ और सिर्फ अपने हाल और मुस्तकबिल के हवाले से जिंदा रहना चाहता हूँ। अपने पास मौजूद 20,000 रुपए कैश की सूरत में मैंने बाबूजी की झोली में डालकर गोया उन्हें लूट लिया था। मैंने उनके कुछ बोलने से पहले ही कह दिया, बाबूजी अगर आपने वाकई मुझे धर्मपुत्र बना लिया है तो मेरी हर चीज पर सबसे पहला हक आपका है। हम लुधियाना में छोटी सी प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाकर काम शुरू कर देंगे। प्रकाश को इस काम का खासा तजुर्बा है। मैं अच्छा सेल्समैन हूँ और सारा भारत घूम चुका हूँ। आपका आशीर्वाद हासिल रहा तो जल्द हम किसी काबिल हो जाएंगे। बाबूजी बोले, बेटा मैं कम्युनिस्ट हूँ, मजहब पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है जैसे पहले किसी जन्म में हमसे कोई अच्छा काम हुआ था जिसका इनाम परमात्मा ने हमें तुम्हारी सूरत में दिया है। आज से तुम हमारे सगे बेटे के सम्मान हो। इस घर को अपना घर समझना। उनकी जज्बाती हालत किसी से पोशीदा नहीं थी। सबने मिलकर मेरी आरती उतारी और हम धर्म के अटूट बंधन में बंध गए। मकान का एक कमरा जो दूसरी मंजिल पर बना था और प्रकाश के ज़ेरे इस्तेमाल रहता था, मुझे अलॉट हो गया था। मेरा मुख्तसर सा सामान वहीं रख दिया गया। मैंने महसूस किया कि अब वाकई वो लोग मुझे अपना फैमिली मेंबर जानने लगे थे। रात को सोने के लिए लेटा तो पूनम अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मेरे तसव्वुरात में आन बराजी। मेरे लिए फरार की तमाम राहें मसदूद थीं। उसे अपने जहन से झटकने का इशारा मुझ में नहीं था, फिर भी उसी कर्बनाक कैफियत से गुजर रहा था जिसका शिकार सुबह भी कई घंटे रहा था। मेरे सान गुमान में ये बात नहीं आई थी कि जासूस की जिंदगी में कभी ऐसा मरहला भी आ सकता है जब उसे अपनी तमाम तर नफरतें और मोहब्बतें बालाए ताक रख कर ऐसे फैसले कबूल करने पड़ते हैं। मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट जरूर कर ली थी कि पूनम को अपने फराइज की राह में रुकावट न बनने दूंगा, और बस इससे ज्यादा मेरे लिए मुमकिन न था। इस फैसले के बाद मैं सुख की नींद सो गया। सुबह मेरी आंख माताजी और पूनम की खत्ता करने की आवाज से खुली। प्रकाश नीचे जा चुका था। वो हूबहू अपने बाप की कॉपी था, मजहब से बेजार और उसी कैफियत का शिकार जिससे हर भारतीय नौजवान गुजर रहा था। माशरती ऊंच नीच और उसको मिलने वाले मजहबी तहफ्फुज ने भारत की नौजवान नस्ल को मजहब से बागी कर रखा था। मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आवाज के सोज और जेरोबम से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। पूनम सोजो साज का हसीन संगम थी। मेरे कमरे में सबसे पहले वही दाखिल हुई। उसने कमरे के दरवाजे में खड़े होकर नमस्कार करते हुए कहा, उठिएगा नहीं क्या? मैंने सरहाने रखी घड़ी पर नजर डालते हुए जवाब दिया, ओह बड़ी देर हो गई। वो बोली, आप मंदिर नहीं जाते? मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, जब देवी खुद चल कर आ जाए तो क्यों जाऊं? मेरे कहे फिक्रे से वो सिमट कर रह गई। हया की एक सुर्ख लकीर ने उसके गालों का अहाता कर लिया। उसने झींपते हुए मौजू बदलने की कोशिश की, चाय अभी पियेंगे आप या नाश्ते पर? मैंने कहा, आपको देखने के बाद सब भूख प्यास खत्म हो गई। फिलहाल तो आपसे बातें करने के अलावा और किसी चीज को दिल नहीं कर रहा। आपको देखकर न जाने क्या हो जाता है। वो बोली, आप तो, और फिक्रा अधूरा छोड़कर चली गई। मेरी ये गुफ्तगू इरादतन थी या गैर इरादी, इसका अंदाजा मैं खुद भी न कर सका। बस मेरा जी चाहता था कि मैं पूनम को किसी न किसी तरह अपने जज्बात से आगाह कर दूं। उसका रद्द अमल क्या होगा, इस बात से बिल्कुल बेनियाज होकर हमारी मुलाकात दोबारा नाश्ते की मेज पर हुई। सबने इकट्ठे ही नाश्ता किया। पूनम ने रसोई संभाल रखी थी और ज्यादातर खाना पकाना उसी के जिम्मे था। नाश्ता करते हुए उसकी सुरमगी आंखें 2-3 मर्तबा मुझसे टकराईं और हम दोनों अपनी अपनी निशिस्तों पर पहलू बदल कर रह गए। इतवार छुट्टी का दिन था। सालिग्राम को इमरजेंसी ड्यूटी की वजह से महीने में बमुश्किल एक छुट्टी मिलती थी। उससे तो मुलाकात ना हो सकी। बाबूजी, प्रकाश और मैं अलबत्ता ताश खेलते रहे। प्रकाश ने अपने दोस्तों से मेरा तारुफ करवा दिया था और उन्हें ये भी बता दिया था कि मैं वहीं रहूंगा। बाबूजी का चूंकि रायकोट के सियासी हलकों में एक मकाम था, इसलिए सबने बज़ाहिर मेरा खैर मकदम किया। हर हिंदू नौजवान की तरह प्रकाश भी शराब को जुज़्वे लाजुनफक जानता था। कम से कम छुट्टी के रोज न पीना तो उसके लिए धर्म भ्रष्ट करने के मुतरादिफ था। मैंने अलबत्ता माजरत कर ली। वो एक मकामी होटल को चल दिया और मैं उठकर घर आ गया। दोनों बूढ़ियां मोहल्ले में हुई एक मृत्यु के अंतिम संस्कार में शिरकत करने जा रही थी। पूनम अलबत्ता रसोई में थी। मैंने मौका मिलते ही धड़कते दिल से पूछा, मैं बातें ज्यादा करता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानती? उसने दुपट्टे का पल्लू मरोड़ते हुए कहा, जी नहीं, मैं भी तो बहुत सी बातें कर चुकी हूँ कल से अब तक, और फिर आप तो मजे मजे की बातें करते हैं। मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा, चुनाचे खामोश हो गया। दिल की नगरी का दस्तूर भी निराला है। यहाँ दाखिल होने वाला पहला सवार ही उसका मालिक बन जाता है। मेरी तरह पूनम के साथ भी यही हादसा गुजरा। मेरे गायबाना तारुफ और 2 दिन की मुलाकात ने ही हम दोनों को एक अनदेखे अनजाने लेकिन दुनिया के मजबूत तरीन रिश्ते में जकड़ दिया। मेरी तरह वो भी नजरें नीचे किए खड़ी थी। बड़ी देर तक हम दोनों कुछ न कह पाए। शायद हम उस कैफियत से गुजरे थे जहाँ लफ्ज खो जाते हैं और जज्बे जबान का रूप धार लेते हैं, ऐसी जबान जिसे दिल से राह होती है। थोड़ी देर बाद वो चली गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर अपनी धड़कनों
दिनों का शुमार करने लगा। शाम के वक्त प्रकाश आ गया, फिर माता जी और मौसी जी भी आ गईं। सबने खाना इकट्ठे ही खाया था। रात को प्रकाश, पूनम, उसका छोटा भाई पिंटू और मैं फिल्म देखने चले गए। सारी फिल्म के दौरान हम दोनों साथ साथ सीट पर गुमसुम बैठे रहे। न उसे कुछ कहने की हिम्मत हुई, न मुझे बात करने का हौसला पड़ा। बमुश्किल हमने इस दौरान में 5-6 फिक्रों का तबादला किया। सुबह में मामूल पूनम मुझे जगाने आई। उसे इल्म था कि आज हम लुधियाने जाएंगे। उसने मेरे लिए कपड़ों का एक जोड़ा पहले से तैयार कर रखा था। स्नान करने के बाद हम सब ने नाश्ता इकट्ठे ही किया। रात को बाबूजी के साथ तमाम बातचीत तय पा गई थी। अब हमने अमली तौर पर काम का आगाज करना था। इसी सिलसिले में आज मैं और प्रकाश लुधियाना जा रहे थे। पूनम चूंकि जल्दी जाती थी, वो चली गई। थोड़ी देर बाद हम दोनों भी रवाना हो गए। लुधियाना के एक पुराने मोहल्ले में प्रकाश ने कमरा किराए पर ले रखा था। हमने सबसे पहले उस अलहदा हिस्से के 3 कमरे जो खाली थे हासिल कर लिए। प्रकाश प्लास्टिक के जूते बनाने वाली एक फर्म में सुपरवाइजर था। उसने मेरे कहने पर उसी रोज नौकरी पर लानत भेज दी। हमने 2-3 मशीनें खरीदी और वहीं से कारीगरों का बंदोबस्त भी कर लिया। प्रकाश ने सिर्फ 2 छोटे छोटे लड़के मुलाजिम रखे थे। 4 रोज बाद जब हम घर वापस लौटे तो बाकायदा अपना छोटा सा कारखाना कायम कर चुके थे। मैंने कमरे को सजाकर दफ्तर का रूप दे दिया था और बाहर एक खूबसूरत बोर्ड प्रकाश एंड प्रकाश प्लास्टिक इंडस्ट्री का लटका दिया था। फैक्ट्री का उद्घाटन मैंने मौसी जी और माता जी के हाथों से करवाया। सालिग्राम छुट्टी न मिलने की वजह से शिरकत न कर सका, लेकिन उसने मेरे लिए खास तौर पर शुभकामनाएं भेजी थी और शिद्दत से ख्वाहिश जाहिर की थी कि उससे मिलूं। बाबूजी और दूसरे लोग सब कारखाना कायम होने पर खुशी से फूले न समाते थे। प्रकाश की वाकफियत ने काम किया और हमें शुरू ही में बड़ा तगड़ा ऑर्डर मिल गया। माता जी और मौसी तो बार बार मेरी बलाएं ले रही थी। मैंने उनके सोए भाग जो जगा दिए थे। शाम को सब लोग वापस चले गए। इस असना में मुझे पूनम के साथ गुफ्तगू का बहुत कम मौका मिला था। प्रकाश और मैं वहीं रह गए। सुबह काम शुरू हो गया। प्रकाश काम में जुटा रहता। करीबन 10 दिन हमने खूब मेहनत करके ऑर्डर के मुताबिक माल तैयार किया। फिर दिवाली की छुट्टियां आ गईं और दिवाली मनाने रायकोट चले आए, जहां पूनम अपनी आंखों में 1000 दीप जलाए मेरी मुंतजर थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।